ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓ ਨ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਦਾਨੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ, ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਿਆ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੁਮਿਆਰ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੜਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ, ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि मनुख जिहड़ा बार बार पैर पैर ते गलतियां करदा है, इनू फिर नरकां दे विच जाण तो कौन बचावे, क्योंकि परमात्मा दे इह घर दी खेड है। तो इहदा सानू जवाब मिलदा वो गुरु है जिहड़ा मनुख नूं परमात्मा दे नाल मिला दिंदा है। अज पौड़ी दे विच मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने इहो गल समझाई, कहण लगे भलिया जीवन दे विच एक गल याद रखी, जे तू परमात्मा तक पहुँचना है ना, तो परमात्मा दे विच मिलन वास्ते तेनू गुरु दे आसरे की लोड़ है। इनू थोड़ा जिहा आपां समझ लईए कि क्यों मनुख गुरु का आसरा लैंदा है। ये दो चीज़ां ने, एक है जीव आत्मा जिन्हों आपां रूह कह लईए, आत्मा कह लईए, एक है परमात्मा जिन्हों परमात्मा कह दो, अल्लाह कह दो, वाहिगुरु कह दो, राम रहीम कह दो। हुण जिहड़ा परमात्मा है, परमात्मा दी अंश ये जीव आत्मा है, तो परमात्मा ने एक खेड रची हुई है, उन्हें आप ही जीवां नूं जिहड़ा ये दुनिया के चक्रां दे विच पाया होया है। परमात्मा ने ना सतगुरां दा अमृत बचन है, कह लगे आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, कह लगे परमात्मा ने आपे कुदरत साजी तो आपे इहदी साम संभाल करदा है। एक खोटे एक खरे आपे परखनहार, कहते परमात्मा ने खेड बना दी, कईयां नूं खोटे बना दिता तो कईयां नूं खरे बना दिता। खोटे का अर्थ है मंदकर्मी लोग, कई पाप करन वाले पासे लग पे तो कई नाम जपण वाले पुन्नां वाले पासे लग पे। खरे खजाने पाइए जिहड़े हुण बाणी पढ़दे नाम जपदे ने, वो तो परमात्मा के नाम खजाने दे विच पाए गए। खोटे सट्टिए बाहर वार जिहड़े खोटे लोग सन, जिन्हां दे अंदर मैल रह गई, उन्हां नूं हुण सुट्टिया गया। कह लगे खोटे दरगे सच्ची दरगह सुट्टिए किस अगे करें पुकार। हुण जिहड़े खोटे ने, जिहड़े साडे वर्गे पापी मनुख ने, इन्हां नूं परमात्मा की दरगाह चों धक्के पैंदे ने। मिलन ये परमात्मा नूं गए सन, पर अपनियां करतूतां करके अपने कर्मां करके परमात्मा तो विछड़ गए, जिन्हों बाणी कहती है किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। हुण खोटे सच्ची दरगह सट्टियां किस आगे करे पुकार, कहते किहदे अगे पुकार करिए। तो मेरे सतगुरु गुरु रामदास कह लगे, कहते भलिया फिकर ना कर, सतगुरु पिछे भज पवें इहा करनी सार। कहते ये बड़ा चंगा काम होवेगा जे तू गुरु दे मगर भज जावें तो गुरु का आसरा लै लवें। गुरु की करता है, अगली पंक्ति दे विच सतगुरु बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, कहते सतगुरु खोटियों खरे करे शब्द सवारनहार। गुरु कोल इन्नी क ताकत है, खोटे होए मनुख नूं जिहड़ा पापी है, जिहड़ा विकारी है, गुरु उन्होंने शब्द के नाल सवार के ते परमात्मा च अभेद करा देंदा है। वो किवें, मैं तुहानूं उदाहरण दे देना एक सौखी जी। एक सुनियार वीर जिहड़ा वो सोने के गहने बनाउंदा है। आपनूं पता जो कच्चा सोना निकलदा वो मैल दे नाल भरिया हुंदा है। कच्चे सोने के कदी गहने नहीं बनते, गहने बनाए जाते ने सोने नूं शुद्ध करके। हुण गहना सोने का ही है, मान लो कोई छाप है, कोई कड़ा है, कोई चैनी, कोई कुछ भी है, वो है सोने का ही, पर कच्चे का नहीं बनिया। वो मैल नूं साड़न वाला ते उन्होंने घड़न वाला गहने नूं उन्होंने जिहड़ा एक मनुख उहदे विच पै जांदा है, उन्होंने सुनियार कह दिता जाता है। चीज़ वो ही है, मान लो किसी ने कड़ा पाया है तो सोने का कड़ा, पर कड़े की शेप तो किसी ने दिती ना। जे चैनी है, किसी ने मुंदरी पाई है, बीबी ने कांटे पाए ने, कुछ भी पाए है तो सोने दे, पर उन्होंने कांटे बनाए, मुंदरी बनाई, उन्होंने साफ किया, यदा एक प्रोसैस दे विचों लंघिया, वो प्रोसैस दे विचों कढ़न वाला सुनियार है। सुनियार की करता है कि कुठाली दे विच सोने नूं पा के ते अग बाल दिंदा है। अग ज्यों ज्यों बलदी है, तेज हुंदी है, तो सोने की मैल सड़दी है। एक दिन मैल सड़ जाती है, शुद्ध सोना रह जाता है। जिस कच्चे सोने की कीमत कुछ रुपये पैंदी सी, उसे पक्के सोने नूं जदों मैल सड़ के गहने घड़ के वेचे जाते हैं, हज़ारां रुपइयां दे विच उहदी कीमत पै जाती। बस आ हाल इस जीव आत्मा का जिहड़ा परमात्मा दे नाल होण लग्गिया गुरु विच काम आ करदा है। सतगुर खोटियों खरे करे। गुरु खोटे मनुख नूं जिहड़ा है ना शब्द सवारनहार धुर की बाणी दे शब्द दे नाल जिहड़ा है वो सवार के उन्होंने खरिया कर देंदा, उन्होंने पवित्र कर देंदा, उन्होंने साफ कर देंदा है। फिर सच्ची दरगह मन्नीए गुर कै प्रेम प्यार, कहते गुरु की प्रेम गुरु की कृपा सदका ना जिहड़ा मनुख खोटा सी, जिन्हों घरों ये जिहड़ा गुरु घरों धक्के पए
ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਲਾ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 20 ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਸੰਗ ਕੀਆ ਹਮਰਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸਟ ਹੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਏ। ਉਹ 60 ਵਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਆਖਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜੁੜੀਏ? ਸੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ, ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੈ ਪਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ परमात्मा ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ परमात्मा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਗਏ। जिस ਵੇਲੇ परमात्मा ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ मूल मंत्र ਦਾ उच्चारण ਕੀਤਾ ਗਿਆ। चलो उन्होंने होर भी बड़े शब्द लिखे ने, भी तेरी कीमत ना पवे, ये तादक जिहड़े ने वो शब्द गुरु नानक साहब ने उचारे। आखिर परमात्मा के सेवकां ने परमात्मा वालों एक नाम का प्याला जिहड़ा सी गुरु नानक साहब नूं बख्शिया गया। तो परमात्मा ने आवाज़ आई, ये गल कही, कह लगे नानक ये नाम का प्याला है, तू पी तो लोकां ताईं इनू पिया, सतगुर विच आप रखे होण। जिस वेले वो नाम का प्याला गुरु नानक साहब ने पीता, परमात्मा ने अगों गल दूसरी कही, कह लगे मैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तू गुर परमेश्वर। याद रखियो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है कि गुरु ते परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं है, हर जन दोई एक है। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ बचन पढ़ते हैं कि गुर परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमात्मा एक रूप है। कह लगे मैं पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं परमात्मा हाँ, तू गुर परमेश्वर, जिहदे उत्ते मेरी कृपा हो जाएगी। उत्थे 3 बचन परमात्मा ने कहे। कह लगे मेरे तक पहुँचना जिहड़ा बड़ा काम औखा है जीव दा, मैं तेनू ये ताकत दे के इत्थों दुनिया ते भेजदा हाँ, जिस उपर तेरी नज़र उस उपर मेरी नज़र। नज़र दर्द है बख्शिश। कहते गुरु नानक साहब नूं कहंदे जिहदे ते तू बख्शिश कर देगा ना, उहदे ते मैं बख्शिश कर दांगा। जिस उपर तेरा कर्म उस उपर मेरा कर्म। परमात्मा कह लगे दूजी गल, जिन्हों तू कर्म कर देगा, जिहदे तो तू रहमत कर देगा, उहदे ते मैं रहमत कर दांगा। क्यों? क्योंकि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तू गुर परमेश्वर। गुर परमेश्वर इन्नी क ताकत परमात्मा ने दिती हुई है। जीव जिहड़ा विकारां दे नाल जिन्ना मर्जी लिबड़िया होवे, एक बार गुरु के चरणों च आ जाए, गुरु उन्होंने सवार के उन्होंने नवा धवा के परमात्मा के चरणों के अपील करा देंदा है। ये परमात्मा के घर का तो गुरु के घर का सिद्धांत, एक कला गुरु के झोली के परमात्मा ने पाई हुई है। वो असीं भाई साहब की पौड़ी मैं पूरी कर देना। कह लगे बाबे पाया बख्शदार पिछों दे, फिर घाल कमाई रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्या भाग हारस्यो बन आई, बाबा पैदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। हुण जदों गुरु ने दात दे दी, बाबा देखै ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसे। गुरु सी ना, गुरु का सीना पिघलिया। याद रखियो सब तो वध जे कोई नरम है वो 2 हस्तियां ने, एक माँ है तो एक गुरु है। बच्चा जिन्ना मर्जी कमीना हो जाए, सब तो वध माँ का दिल पिघलता है। जग्यासू का जीवन जिदा का मर्जी गर्क हो जाए, सब तो वध गुरु का सीना पिघलता है। बाबा देखै ध्यान धर, गुरु नानक साहब ने ध्यान की बिरती ना वेख्या, जलती सब पृथ्वी दे साई। क्यों पृथ्वी सड़ रही है? कह लगे बाजों गुरु गुबार है, गुबार का अर्थ हनेरा। गुरु तो बिना मनुख हनेरे दे विच अज्ञानता च जा रहे ने, है करदी सुनी लुकाई, कुरला रहे ने लोग। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। परमात्मा दे कोलों पार ब्रह्म परमेश्वर दे कोलों गुर परमेश्वर की दात लैके गुरु नानक साहब ने ये उदासियां करके इस जिहड़ी बलदी हुई विकारां की अग दे विच पृथ्वी सी उन्होंने बचाउण दे लई मेरे सतगुरु कहन भाई साहब कह लगे चढ़िया सोधन धरत लुकाई, उन्होंने सोधा लाउण वास्ते, उन्होंने सुधारन वास्ते गुरु नानक साहब तुरे। इत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी बख्शिश करते हैं, कह लगे सतगुर विच आप रखे होना। परमात्मा ने आपा भाव जिहड़ा है ना, जिहड़ी दात है वो गुरु दे विच टिका दित्ती है। कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु कहंदे ये मैं प्रतख तौर पर तुहानूं सुना देना डंके की चोट दे नाल की कि बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पायो। ये गुरु दे कोल ताकत है, गुरु परमात्मा तक जीव नूं पहुँचा दिंदा है। एक गुरु अर्जुन साहब जी का बचन पढ़ देना, कह लगे जैसा सतगुर सुनीदा। सुनिया सी किते ना किते ये गल सुनी सी कि गुरु जिहड़ा है ये मनुख दे अंदर दी अज्ञानता कढ दिंदा है। जैसा सतगुर सुनीदा। जिस वेले मैं गुरु दे कोल आया, गुरु दे चरनां च आया, कहंदे तैसो ही मैं डीठ, डीठ दा अर्थ है वेखना। कहंदे कदी मैं सुनिया सी कि गुरु जीव नूं परमात्मा तक पहुँचा मिला दिंदा है। कहण लगे हुण आण के वेख भी लिया, जदों नाम जपिया बाणी पढ़ी, कह लगे विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। कह लगे वो विछड़ियां होइयां जीव आत्मा नूं परमात्मा तक मिला दिंदा है। हर नामों मंत्र दृढ़ाए दा वो हुण किवें वो परमात्मा तक मिलाउंदा। गुरु कोल कला है ना, कला किवें वापरदी? वो शब्द दे राही, वो नाम दे राही वापरदी। असीं सारे गुरु दे कोल बैठदे हां, मैनूं माफ़ करियो,
जिन्ने भी ने चंगे भी आउंदे ने मंदे भी आउंदे। मैं पिछले दिन भी कहा सी बाबा प्रिथी चंद भी गुरु के कोल बैठदा, गुरु अर्जुन साहब भी गुरु के कोल बैठते हैं। पर फर्क की है, हर नामों मंत्र दृढ़ाई दा, जिहड़ा गुरु के दृढ़ कीते हुए मंत्र नूं जिन्हों गुरु दृढ़ करवा देवे, नाम जपा देवे, जो उन्होंने जपदा है ना, वो नाम जपन दे नाल फिर परमात्मा तक पहुँच जाता है। हर नामों मंत्र दृढ़ाई दा कट्टे हौमै रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्हां तुरे पया संजोग। जिहड़े कला गुरु के कोलों कदी सुनी सी, वो गुरु ने प्रतख विखा दी, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु कहते ये मैं तुहानूं डंके की चोट ते कह देना भलिओ, गुरु के कोल इन्नी क ताकत है, जिहड़ा मनुख गुरु के कोल आ जांदा उहदा पार उतारा हो जाता। अगे सतगुरु कहन लगे भलिया जिहड़ा गुरु है ना, सतगुर मिलिया तू उन्होंने मिल पा, सच्चे गुरु नूं एक बारी उहदे चरनां 'च चले जाए, सदा मुक्त है। कहंदे जिहड़ा गुरु के चरनां 'च चला गया ना, वो विकारां दे, वो माया के बंधनां तो मुक्त हो जाता है। तो मन च आवेगा वो किवें हो जाता है। कह लगे जिन विचों मोह चुकाया, क्योंकि गुरु के अंदर आप कोई मोह नहीं हैगा, जिहदे कोल आप मोह नहीं हैगा, वो तुहाडे अंदर भी मोह नहीं कोई रहन देवेगा, वो तुहाडी भी बंद खलासी करा के तुहानूं परमात्मा तक अपेद करा देगा। अज जिहड़े साडे झोली चुक गुरु बने फिरदे ने, जिहड़े डेरे दे साध बने फिरदे ने, उन मोह दे निर्लेप नहीं है। ठीक है, मेरे कई बारी शब्द कईयां दे सीने नूं लगदे, पर एक गल याद रखियो, जिहड़ा बाबा अजे डेरे की संपत्ता नहीं संपत्ति दे नहीं उपर उठिया, जिहड़ा कहंदा मेरे डेरे की इन्ने किले जमीन है, भलिया जे तू अजे भी चोला धर्म का पा के जमीन दे विच ही फसिया पिया, अजे भी माया दे विच ही फसिया, तो जिहड़े तेरे कोल आउणे ने उन्हां नूं माया दे चक्कर चों कित्थों कड्डेगा। गुरु तो वो सी ना भी जिन्हें अंदर माया का मोह चुकाउणा सी, ते गुरु दे आप आ जिहड़े साडे डेरेदार ने, बहुतियां दी लड़ाइयां ते जमीनां पिछे हुंदियां ने। गुरु अजे विकारां दे विच ने। आ विकारी कई गुरु 3-4 जिहड़े जेलां च टंगे ने, की कुछ रंग लड़ियां करते रहे। तो जो किसी ने कहा तो इन्हें अगों कहा सी, कहन लगे कृष्ण करे तो कृष्ण लीला, हम करे तो करैक्टर लीला। चलो आप शब्द संकोच में रखिए, ये गुरु के हालात नहीं ना। जिहड़ा अजे भी इन्हां चीज़ों के विच एक साडा होर साध है, चलो सिख दे नाल नहीं, वो 5 उंगलों में 5-5 बीड़ियां ला के हुक्के खिंचदा है। जिहड़ा अजे तंबाकू तो नहीं बचिया, पता नहीं कल नूं फुड़क जाना कि परसों नूं फुड़क जाना, तुहानूं कित्थों बचा लेगा। जिहड़ा मनुख जां जिहड़ी हस्ती आप विकारां तो मुक्त नहीं, वो तुहानूं मुक्त नहीं करा सकदी। मैं इहदी अक्सर उदाहरण देना ना, आ नोटबंदी होई सी अज तो 3-4 साल पहलां, ते जिन्हों बैंक वालियां दे कोल नोट नहीं सी हैगे, वो हत्थ कड़े दे करदे पे साडे कोल नहीं हैगे, तो तुहानूं कित्थों दे दईए। एक प्रतख उदाहरण, किहड़ियां लंबियां लाइनां लगियां रहिंदियां हुंदियां सन बैंकां दे विच, चेंज कराउणे ने, चेंज कराउणे, नोट चेंज कराउणा, करंसी चेंज कराउणी है। जिहड़े बैंक दे कोल पैसा ना होवे, चलो ये भी थोड़ा जिहा दूर पुराना ही हो गई गल, नवीं दे दिंदे आपां। साडे कोल ATM है, सारियां दे कोल हुंदे ने। खाते 'च कुछ होवेगा तो ATM 'चों तुसीं कुछ कढाओगे ना। जे खाते विच ही कोई बैलेंस ना बचिया, पैसा ना होया, ATM तुहाडा की करेगा। जिहड़ा गुरु दे कोल ही अपने खाते दे विच नाम नहीं, सिमरन नहीं, बंदगी नहीं, वो तुहानूं की माया देवेगा, वो तुहानूं की परमात्मा दे नाल जोड़ेगा। सो सतगुरु इत्थे कह रहे हैं, कह लगे सतगुर मिलिया सदा मुक्त है, गुरु नूं मिल, गुरु के चरनां 'च जुड़, गुरु दे कोल इन्नी क पावर है, गुरु दे नाल जुड़िया होया मनुख विकारां तो मुक्त हो जाता है। पर एक गल याद रखी, गुरु वो है जिन्ने विचों मोह चुकाया, गुरु का अपना मोह खत्म होया पिया है। जो असी गुरु काल पढ़ते हैं ना, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी, कोई समा सी जिस वेले आनंदपुर दे उत्ते कीमती भटावां अर्पण कीतियां जांदियां सन। गुरु दे 4 लाडले जिहड़े अखां दे सामने खेडदे सन। हर एक माँ बाप नूं जिहड़ा वो धीआं पुत्त बड़े प्यारे हुंदे ने। गुरु कोई पत्थर नहीं, गुरु नूं बड़े प्यारे सी, पर गुरु दा मोह नहीं सी कोई। प्यार तां सही, प्यार ते मोह दे विच अंतर हुंदा है। बच्चे प्यारे सन पर मोह दी पकड़ नहीं सी हैगी। आनंदपुर नूं घेरे पै गए। जिस वेले सरसा दा जंग हुंदा ते सरसा छड्डी जांदी है। ये गल बाबा अजीत सिंह वड्डे पुत्तर नूं, जो साडा पुत्त जवान हो जाए ना दाड़ी वाला, प्यो सोचदा हुण इहदा विआह कर दईए। मावां ते भैणां जिहड़ियां ने वो आसां लाउण लग पैंदियां ने, इदां इदां खुशियां मनावांगे। प्यो भी चाह दे नाल हौली हौली अड्डियां तां नूं उठदियां ने। विआहण दी उमर दा सी बाबा अजीत सिंह। प्यो ने कह दिता, गुरु ने कह दिता, पुत्तर काफले दे उत्ते आँच नहीं आउणी चाहीदी, तेरा ते जिहड़ा तूंबा तूंबा हो जावे, पर याद रखना खालसे दी
हिफाजत करना ਜਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਕਈਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ तुम्हें आँख से बर्शी चलाते हुए देखें। कह लगे मैंने मेरा दिल करता मैं तेन बर्शी चलाते आया देखा, ख्वाहिश है तुम्हें बर्शी चलाते हुए देखें, अपनी आँख से तुम्हें तीर खाते हुए देखें। कहते मेरा दिल करता है तेरे जिस वे सीने के विच तीर वजना मैं अपनी अखां दे नाल वेखां। कौन एक प्यो गल करता है? क्योंकि गुरु नूं प्यार सी बच्चों के नाल, पर याद रखियो अंदर मोह नहीं सी। ये एक नहीं इतिहास समुचा साडा भरिया पिया इन्हां गल्लां दे नाल। सो सतगुरु जी इत्थे बख्शिश करते हैं, कहन लगे भलिया जिन विचों मोह चुकाया गुरु वो जिन्हें अपना मोह खत्म कर दिता होया है। आनंदपुर दे विच सी उदों भी रौनकां सन, अज माछीवाड़े दे विच सारा शरीर जिहड़ा छालियां दे नाल भरिया पिया, लत्तां कंडियां दे नाल भरियां पईयां ने। शरीर दा धर्म है ना, वो सानूं बयान करना पवेगा। खून दे नाल लत्तां भरियां पईयां ने, तां भी मेरा पातशाह उत्थे मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा शब्द गाउंदा पिया। कोई उलामा नहीं जिन्हां विचों मोह चुकाया। कहंदे गुरु ये है जिन्हें अंदरों मोह चुका दिता। उत्तम यह विचार है। विचारां अज तक बड़ियां कीतियां जांदे ने, बड़े बड़े चंगियां विचारां लोग पेश करते हैं। जदों ये चलो हुण ते अंग्रेजी का सिस्टम आ गया, सारा किसी नूं गुड देती, वैरी गुड देती, एक्सीलेंट देता। पहलां की कीता जांदा सी? चंगा, बहुत चंगा, उत्तम, अति उत्तम, ये शब्द वरते जाते होंदे सन। हुण ते स्टार दे के काम निबेड़ दिता जाता है। पर सतगुरु कह लगे उत्तम यह विचार, बड़ी चंगी विचार होवेगी। किहड़ी? जिन सच्चे स्यों चित लाया। जिस विचार नूं सुन के तू परमात्मा दे नाल चित नूं जोड़ लवें, वो विचार बड़ी चंगी है, वो गल बड़ी चंगी है। तो मैं अपने विषय वाल आवां। याद रखियो अज तक बड़ियां बड़ियां चंगियां विचारां कीतियां जांदे, बड़े भाषण बड़े वधिया दिते जांदे ने। एहो जे जिहड़े लीडर भाषण देंदे ने कि नौजवानी का खून खौल उठता है। मैं बड़ी बारी ये गल करदा ना, ये याद रखियो जिहड़े लीडरशिप है ना, जिहड़े आगू ने वो हमेशा बजुर्ग होणगे, कदी भी नोट करियो। जिहड़ी सिपाही ने ते जां जिन्हां ने ये अगे भाषण सुनना वो नौजवान हुंदे ने। उहदा कारण है आगू कदी नौजवान नहीं हुंदा। नौजवान का खून गर्म है, वो कोई भी फैसला जिहड़ा है वो दिमाग तो घट लवेगा, होश तो घट लवेगा, जोश तो ज़्यादा लवेगा। आखेगा बावां 'च बल कर दो, ताड़ फड़। जिहड़ा बजुर्ग है उन्हें उम्र हंडाई, वो अंदर सहनशीलता, लीडरशिप वास्ते बड़ा कुछ जरना पैंदा है। वो दिमाग ला के हौली हौली चलता, नहीं किहड़े तरीके काम नूं किहड़े तरीके नाल मारिया जांदा है। एवें तो नहीं ना कहंदे पुराने समय 'च बुढ़े नूं संदूक 'च पा के लै गए सी विआह 'च। वो ये बजुर्ग बड़े काम आउंदे ने। जिहड़े लीडर ने वो ये की करदे ने, ये भाषण देंदे ने, बड़े बड़े चंगे विचार ने, नौजवानों का खून खौल उठता, लोग अश अश कर उठते हैं। पर ये विचारां जिहड़ियां चंगियां विचारां ने समाज दे विच कोई जिहड़ा बदलाव नहीं लिआउंदियां। जदों इलैक्शन हुंदे ने जां जदों भी कोई सरगर्मियां हुंदियां ने, किन्ने किन्ने चंगे विचार दिते जांदे ने। कोई ना कोई दिन मनाया जांदा है, कदी किसी शहीद का मना लिया, कदी किसी महापुरख का मना लिया। किन्नियां चंगियां चंगियां विचारां पेश कीतियां जांदियां ने। कि इहदे नाल साडे जीवन बदल गए? नहीं। ये विचार तो चंगे है, पर इन्हां मगर देण वाले का किरदार कई बारी बड़ा नीवां हुंदा है। याद रखियो विचार उदों असर करते जो किरदार चंगा होवे। जो किरदार चंगा ना कोई होवे। मैनूं गल चेते है कि एक लीडर ने नशे ते भाषण दिता, बड़ा चंगा भाषण दे के ताड़ फड़ा कराई, उहदा लागे पीए, कहंदा नेता जी अज कमाल करती, नशे ते तुसीं भाषण दिता शराब ते, कहंदा अजे पैग ही छोटा जिहा लगा सी, वध लगा हुंदा ते कम माल होर हो जानी सी। उसो ये अज दे लोकां दा हाल है। भाषण एक केवल ते केवल कला बन के रह गई है। जे कोई लैक्चर करता है ना, भाषण करता, एक कला बन के रह गई है। जो कोई मनुख भाषण करता तो सुनने वाले जिहड़े ने वो बल्ले बल्ले कर उठते हैं, पर बोलने वाले का मगर किरदार कोई नहीं हुंदा। मैनूं थोड़ा जिहा इन्हां चीज़ों का ज़्यादा पता। मैं ये काम करता रहा जी सारे स्टेजां ते 5-6 साल स्टेजां सांभियां। मैं नाटक कीते, कविता की, कोरियोग्राफी, चलो हौमे नहीं, भाषण भी करता रहा। मैं बड़े बोले। हुण मेरा विषय कथा का बन गया। भाषण करने वाले दे कोल मैटर तो है, पर मगर किरदार नहीं हैगा। उदाहरण तुहानूं देदा, इल बहुत उच्ची उड्डदी है।
इल जो आसमान च उड़दी है ना, एक विद्वान ने इत्थों तक लिखिया गुरमुखो, इल खंभ मारने बंद कर देंदी, वो आसमान दे विच तारियां लाउंदी है, इन्नी क ज़्यादा उच्ची उड़दी है, खंभ मारने बंद, फिर तारियां लावे कि कदी एनू कदी एनू। विचार बड़ी उच्ची है, उडारी बड़ी उच्ची है, सोच बड़ी नीवी है। जिथे मुर्दा घर वेखदी है, जिथे हड्डो रोड़ा वेखदी है, था करदी एकदम आण के मुर्दे ते बैठ जाती। साडा भी तो इहो हाल है, साडे भाषण इदां दे हुंदे ने, ताड़ फाड़ करदे, आओ कर दो, समाज लुटिया गया, सिक्खी लुटी गई, पंथ नूं खतरा पै गया, आओ जे हो गया। जिस वेले विकारां दी, जिस वेले लिफाफियां दी गल आउंदी, माया दी गल आउंदी, थाड़ करके बंदा उत्थे डिके सारा कुछ खत्म हो जाता है। वड्डे वड्डे मोर्चे लगते हैं, की रिजल्ट निकलता है? मगरों कुछ नहीं रिजल्ट निकलता, क्योंकि लैक्चर दिते गए, भाषण वो तैयार होया सी मैटर, वो भाषण दे दिता गया, मगर कुछ नहीं होया। विचारां अज तक एक कवि के ख्याल बड़े बड़े चंगे ने, बड़े उत्तम विचार ने। एक कवि माँ ते कविता लिखता है, सुनने वाला रोह उठता है, पता बाद लगता है जिस वे कवि की अपनी माँ बिरध आश्रम के बैठी होंगी है। एक मनुख नशे के भाषण लिखता है, जीवन सारा बर्बाद होया पिया है। ये उत्तम विचार हो सकते हैं, पर ये जीवन नहीं पलटना। सतगुरु कह लगे उत्तम यह विचार है, भलिया वो विचार नूं चंगा समझिया जा सकता, वो मिलता है गुरु के कोलों, क्योंकि पौड़ी गुरु की चल रही है ना। हुण जिहड़े इहदे नाल श्लोक लगे सन, 2 श्लोक सन, जिथे पहले श्लोक दे विच सतगुरां ने धर्मियां की गल की, बड़े चंगे ख्याल सन उन्होंने। साडी मर्यादा बड़ी परपक्क है। मुसलमान कहते सन असीं शरह दे बड़े पाबंद है, हिंदू कहता सी मैं तिलक धोती जिहड़ा है वो कदी नहीं छुड़दा, जोगी कहता मैं सुन च ध्यान लाउना। जो ये लोग गल्लां करते सन, कथा हुंदी सी ते बस करा देंदे सन, पर अंदर किरदार नहीं सी रह गया। सतगुरु कह लगे उत्तम यह विचार है, चंगी विचार ये है जिन्हों सुनन दे नाल सच्चे स्यों चित लाया, जिन्हों सुनन दे नाल मनुख की सुरत जुड़ जे। किन्नी उत्तम विचार मेरे गुरु नानक साहब की होगी। एक शब्द सतगुरु जी की कन्ना की कटोरी दे विच पाउंदे ने, उहदी इहो जी सुरत जुड़दी, वो गुरु नानक का रूप ही हो जाता है। एक एक शब्द सुनिया जाता है ना। असीं समुचा इतिहास गुरु नानक साहब का पढ़ लो, किते नहीं ये लिखा कि गुरु नानक साहब ने 5 घंटे 2 घंटे इन्ने घंटे कीर्तन किया। एक शब्द सुनाया सज्जन ठग नूं, बली कंधारी नूं। एक सतगुरु कह लगे उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। वो विचार बड़ी चंगी, वो है गुरु की बाणी, वो है सतगुरां दे घर का नाम, वो घर की विचार, जिन्हों सुन के सच्चे दे नाल चित लग जाता है। जो सच्चे दे नाल चित लगे, सतगुरु कह लगे जग जीवन दाता पाया। कहते जगत नूं जीवन देने वाला दाता वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हुंदी किवें है? जिन्हें सच्चे स्यों चित लाया। जो उत्तम यह विचार सुन के, गुरु की गल सुन के मनुख जो नाम जपदा, नाम जप के सतगुरु कह लगे उहदी सुरत परमात्मा नाल जुड़दी है, फिर वो उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं पा लैंदा है। उत्तम यह विचार है जिन्हें सच्चे स्यों चित लाया। जो चित जुड़ गया जग जीवन दाता पाया, तो परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। सो ये सी 6वीं पौड़ी की विचार। समुचा तत्त भाव ये निकलता, क्योंकि 2 श्लोक जिहड़े सन वो बड़े सख्त सन, तिखे श्लोक सन। इन्हां दा भाव इहो ही है, भलिया जिन्ना चिर तक तेरे अंदर विचार चंगी नहीं बनती, तेरे ख्याल चंगे नहीं बनते, तेरा चित्त परमात्मा नाल नहीं जुड़ना। अपनियां मन मर्जियां छड्ड रखदे, अपने मन के ख्याल छड्ड के गुरु की मत नूं धारण कर ला। अज साडी सिੱਖੀ इत्थे अड़ी होई ना, मैं जो कहना वो होना चाहिए। सच्चाई की अज आ डेफिनेशन है, जो मैं कहना वो सच है। जे मैं तुहाडे नाल सहमत नहीं तो तुहाडा सच सच नहीं, तुहाडा सच झूठ है। सतगुरु कहते अपनी मर्जी छड्ड के गुरु की मत धारण कर। गुरु की विचार तेनू जगत के जीवन तक पहुँचा देगी, परमात्मा तक पहुँचा देगी। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान, होइयां भुल्लां गलतियां की खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की